পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ সন্ত্রাসী হামলার আজ কত বড় পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী। বিজেপি জাতীয় সভাপতি মাইনরিটি মোর্চা জামাল সিদ্দিক সাংবাদিক সম্মেলন করে সাংবাদিককে জানিয়েছেন, কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা কোথাও বাংলার সাথে যুক্ত আছে। পাকিস্তান কাশ্মীরের পাহালগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। ভারতের মুসলমানরা একসঙ্গে থাকে এবং তারাও এই হামলার নিন্দা জানায়। ওয়াকফ বিল সংশোধনী 2025-এর মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর যেভাবে নৃশংসতা ও বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এই সন্ত্রাসী হামলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাত আছে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, একইভাবে সন্ত্রাসীরা পাহালগাঁওতেও বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানিদের সংযোগের মাধ্যমে হামলা চালিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমরা তদন্ত দাবি করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের দ্বারা ওয়াকফের সম্পত্তি লুট হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 2026 সালে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে উত্তর দেবেন। তুষ্টি নীতির অধীনে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়েছে। হিন্দুদের উপর নৃশংসতা ও হত্যার উত্তর 2026 সালে দেখা যাবে, যখন সরকার পরিবর্তন হবে। ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই হিন্দু, আমাদের পরিচয় এক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বদ্ধ চোখ 2026 সালে জনসাধারণ খুলে দেবে। নোংরা রাজনীতির ভারত চলছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নোংরা রাজনীতির সুযোগ নিচ্ছে। এই নোংরা রাজনীতি লজ্জাজনক। প্রধানমন্ত্রী এর জবাব দিয়েছেন, পরিবার তুষ্টি নীতি বন্ধ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের ওয়াকফ সম্পত্তি লুটপাটের তদন্ত করা হবে। এটা বন্ধ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরাপত্তার প্রতি জনগণের আস্থা হারিয়ে গেছে। আপনার পুলিশ 5 বছরের ক্ষমতার লাগাম, আপনার অন্যদের অভিযুক্ত করা এখনও নিন্দনীয়। আমরা এক থাকব এবং নিরাপদ থাকব। উপস্থিত ছিলেন মাইনরিটি মোর্চা পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি চার্লস নন্দী, সম্পাদক রেবেকা, এসকে নওসাদ ইকবাল, সভাপতি দক্ষিণ কলকাতা জেলা, রফিক সহ অন্যরা। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय हिंदू है, कोई भारतीय सत्ता हमारी संस्कृति एक है, हमारी विचारधारा एक है, हमारी पहचान एक है। मुझे तो ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों एक ही है। कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई आपसी रिश्ता जरूर है। जो पश्चिम बंगाल में हुआ वही नाम सोचकर हिंदू भाइयों को अटैक जो है पहलगाम में भी किया गया। मैदानी अभिशाले से यहाँ भी हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की जा रही है, उसके घरों जलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए मुझे वहां के दहशतगर्द यहाँ पर आतंक का कोई खेल रहे, बहन बेटियों के इज्जत को लूट रहे। अभी मुर्शिदाबाद के दौरे पर गया था, वहां हमने अपने बहन भाइयों से बात की है, बहुत पीड़ा में हूँ। और ये यहाँ की जो हिटलर सरकार है बंगाली की, उन्होंने आंख को बंद कर दिया। होता है कि हिंदुओं की हत्या कराकर जो यहाँ के मुसलमान है वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें। वो फिर से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुसलमान भी समझ चुका है और मुसलमान को भी पता है। और जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसकी तरह उसकी शाखा भी बचती नहीं है। अब ममता जी ने अभी आपने देखा होगा कि देश में सरकार से सब प्रॉपर्टी लूटा गया। प्रॉपर्टी तो अभी पूरे भारत वर्ष में है और इस पश्चिम बंगाल में लगभग 87,000 प्रॉपर्टियां। डाटा बताता है जेपीसी की रिपोर्ट बताती है। इसके पहले जब संजय कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 में, उन्होंने बताया कि भारी तादाद में पश्चिम बंगाल की जो प्रॉपर्टियां है उसकी लूट हुई है, उनको बेचा गया, उनका दुरुपयोग हुआ है। जो प्रॉपर्टियां है हमने पहले किराए दामों में देती नहीं, जिसका किराया 25,000 होना चाहिए वो 200 रुपये 100 रुपये के लीज पर दिया गया। ये जो लूट हुई है देश भर में खुला हुए ताकतवर लोग थे और सरकार के में बिठाने के लिए जिन्होंने को सहयोग
किया था उन लोगों ने सुनता बहुत दिनों से बात कर रही थी कि लोगों के लाइसेंस को रद्द करना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए, जिससे कोई इसका दुरुपयोग न कर पाए। उस संशोधन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी पास करवाया, अभी बिल लागू हुआ। लेकिन मुझे दुख एक बात, ऐसा कानून जिसके माध्यम से गरीब को उनका हक मिलने वाला, अल्लाह की प्रॉपर्टी छूटने वाली, वहां भी हमारी बहन ममता जी कह रही है कि हम उसको इस देश में, इस पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होते। देख रही है क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल के गरीबों को न्याय नहीं मिल रही है? ये एक प्रकार से अपने आप नहीं है। आप यहाँ की महारानी नहीं है। आपको 5 सालों के चुनाव आपने किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, और आपको सिर्फ चुनाव इसलिए किया था क्योंकि आपने मुस्लिम को बहकाया। आपने बहकावे में आकर, डर में आकर, जो आपने डर दिखाया सीए के नाम पर, ठीक चुनाव से पहले 21 में इसी प्रकार से जो सीए कानून लागू हुआ था, यही बनता उन्हें करके देगा, उनके धर्म को छीन लिया जाएगा। तो मैं आपके सामने इस बात को एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति को ना पाकिस्तान भेजा गया, ना बांग्लादेश भेजा गया। सारे जो भारतीय है उनको तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया, वो आगे बढ़े। बिल को एक चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल के भाई बहनों को वो ठगना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से वो कहना चाहता हूँ कि अब काट की हाड़ी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के भी लोगों को पता है, पश्चिम बंगाल के हमारे जो भाई बहन है उनको पता है कि आपने किस तरह से अपने मंत्रियों के माध्यम से वह की प्रॉपर्टी को रोका। तो पता है उनके बाजार के आसपास की सैकड़ों दुकानें, सैकड़ों प्रॉपर्टी जो वहां पर थी उनको ऐसे ही आक्रमणकारियों के हवाले ममता बनर्जी ने कर दिया। आज वहां दरगाह में जाके तो वहां दरगाह में जाने के लिए नहीं होती है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है फिर अपने माफियाओं के हवाले कर दिया। ये किसी की रिपोर्ट में नहीं है, उसमें कौन लोग है? उसमें एक नंबर के जो सबसे बड़े कब्जेदार है वो फरीद हकीम नाम है, जिनको बाबी हकीम भी कहा जाता है। वो इनके मंत्री है, यहाँ के मेयर भी है। उसी प्रकार से जो दूसरे के लाडले मंत्री है इमरान साहब, जो राज्यसभा के एक एमपी है। उसी प्रकार से जाकिर साहब जो बहुत माफिया के रूप में जाने जाते हैं, जो भी मंत्री है, और जावेद खान साहब, इन सभी साहबों ने, और ये तो दादा की बड़ी मछलियां हैं, इन छोटी छोटी मछलियों ने प्रॉपर्टी को कब्जा किया है। उनके नाम में गिरवाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। सारे नाम मोदी सरकार ने निकाल लिए और जल्दी इन सब पर कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के लिए, यतीम के लिए, बेवा के लिए, मिस्कीन के लिए, बेरोजगार के लिए उसका दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। जितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है उसको जरूर छुड़वाकर उनके हवाले किया जाएगा, गरीबों के हवाले किया जाएगा। उसका जो इनकम है उससे स्कूल बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, शिक्षा में लगाए जाएंगे, और मुसलमानों के इस तरह की व्यवस्था उनके ही पैसे, वक्त के पैसे से जरूर किया जाएगा। इन सब विषयों को लेकर मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ, और मुझे खुशी इस बात की, अल्लाह पाक ने उनको इस काम में नहीं लगाया। मेरा ऐसा मानना है जिस प्रकार से मुस्लिम देशों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार दिए, उनको सम्मान दिए, ये काम देकर वो प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह ने अपने प्रॉपर्टी का काम देकर माननीय प्रधानमंत्री को ये बताने काम किया है देश को। यही आपके सही मसीहा, यही आपके सही लफ्ज़ है। काम के लिए, मुसलमानों काम के लिए अल्लाह पाक उन्हीं में से जो लोग हैं उनमें से अच्छे सच्चे और अपने महबूब बंदे को चुनकर अपने काम को करवाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे के रूप में मोहतरम हमारे
मोदी साहब को चुना है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुना है और वो अपना काम करवा रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे अपना विश्वास है कि अब जो देश भर के हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो हमारे गरीब भाई है, उनके लिए एक तरक्की का रास्ता इस वक्त बोर्ड के माध्यम से खुलेगा। जो भ्रष्टाचार है उस पर ताला लगाया जाएगा। तो गाड़ी ने कब कहा इसको जरा मेंशन करें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चला। लगभग 38 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से सदस्य बनाए गए। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत काबिल और बहुत होनहार और बहुत कर्मठ हमारे अध्यक्ष जो गांधी साहब वो काम कर रहे और योजनाओं को हमारे प्रधानमंत्री के कामों को नीचे तक पहुंचाने में काम कर रहे। पूरा संगठन मोर्चा काम कर रहा है। वो आपस में टकरा रहे क्योंकि ये जो गरीब कल्याण की योजना नीति है जो आपने आजाद साहब के नाम की स्कीम बताई, अभी भी वही सेम स्कीम ओबीसी में जो मुसलमान आता है उसको ज्यादा पैसे वहां ओबीसी डिपार्टमेंट से मिलता है, जो मुसलमान ओबीसी में नहीं आता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया जिसपे जो ओपन कैटेगरी के होते सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे शुक्ला डे रिश्ता डे सिंह डे जो प्राइवेट क्लास के होते जो ओपन कैटेगरी होते उनमें जो गरीब है गरीबों के लिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में ज्यादा मिलता था। इसलिए लोग मुआवजा की अप्लाई नहीं करते थे, वो पैसा बच जाता था। और आपको पता है एक बार अगर बात अप्रैल में अडॉप्ट हो गया तो सालों में पैसा खा लगता था, बाद में वापस जाता था। इसलिए उस स्कीम को कम करके लोग यहाँ ज्यादा आर्थिक लाभ ले सके इसलिए किया। देखिए ये शर्मनाक बात है। राजनीति होनी चाहिए लेकिन हमारी गंदी राजनीति का फायदा पाकिस्तान ना ले, बांग्लादेश ना ले, हमारे के तरफ तिरछी नजर देखने वाले ना ले। लोग हमारे इन बातों का दुरुपयोग ना कर सके जिससे हमारा दबाव पाकिस्तान पर कमजोर पड़ सके, इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लोग सत्ता के लालच में इस प्रकार के ले रहे कि आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका जवाब जिस प्रकार से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वहां पर स्ट्राइक करके, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके, इस बार में इसका जवाब जरूर मिलेगा और पाकिस्तान को इसका जवाब धोखे खानी पड़ेगी। कश्मीर में जब विकास के पथ पर चल चुका, कश्मीर को भी माननीय प्रधानमंत्री पर विश्वास आ गया। इसलिए आपने देखा होगा कि पहली बार इतिहास में कश्मीरियों ने भारत के पक्ष में बंद किया। अभी तक भारत के खिलाफ बंद कर और कश्मीर में बच्चा बच्चा सड़क उठा है, वो निंदा कर रहा पाकिस्तान, वो मांग कर रहा प्रधानमंत्री से कि आप पाकिस्तान को हमला कीजिए। पाकिस्तान हमारे इमोशन से खेल रहा है, हमारे रोजगार से खेल रहा है, हमारे भविष्य से खेल रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसका असर जरूर तो पाकिस्तान को लेना चाहिए। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि वकील रखना अटैक के फौरन उस जगह के जहां अटैक हुआ था, हमने दिखाने की कोशिश किया, हमें जवाब दिया कि हम तुमसे डरते नहीं है, तुम छुपकर जो भटकाए कर रहे हो, हम खुलेआम तुम्हारे सामने आकर तुमको चैलेंज करने का काम करते हैं। और जिससे जो हमारे देश के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटक हैं, उनको हिम्मत आएगी। और अमित शाह जी को देश भर के लोग बधाई देते हैं। आप जिस तरह से एक पालक के रूप में, एक मुखिया के रूप में खड़े हुए और आपने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया, इस प्रकार से हमारे बारिश होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम नेशनल दफ्तर को मार्केट गिराया जाएगा और पाकिस्तान को इसका जरूर सबक सिखाया जाएगा। मुझे और उनके बांग्लादेशी समर्थक जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू भाइयों को पीट कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसके बहुत बड़ों के साथ व्यवहार कर रहे थे, उसके घर जला रहे थे, कहीं नहीं लोग तो जाकर कश्मीर में होनी थे तो नहीं करे। ये जांच का विषय है, अमित शाह जी से मिलूंगा, मैं बात करूंगा, इसकी जांच करवाई जाए। कहीं इसका कनेक्शन पश्चिम बंगाल के ममता के गुटों के साथ तो नहीं के खिलाफ करके रखा है। का माहौल है, एक जो है लोगों में एक ऐसी आश्वासन की भावना चला रही है, यहाँ की सरकार को लोगों पर भरोसा नहीं, ये वजह
केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री को अमित शाह जी को लक्षण भेजना पड़े, सुरक्षा जी को भेजना पड़ा, लगाना पड़ा। हाँ, अगर किसी भाई को लगता है कि हथियार रखने चाहिए तो लाइसेंस लेकर, कानूनी तौर पर लाइसेंस लेकर उसको जरूर हथियार रखना चाहिए, क्योंकि ममता के कानून पर किसी को होगा। मुझे मोबाइल श्रेणी की सुरक्षा, मैं घर से दौरे पर, मैं मुर्शिदाबाद का हरियतपुरा गया, मैं हमारे भाई बहनों से मिला लाकर, लेकिन ममता की सरकार ने मुझे बाइक पर सुरक्षा होने के बाद भी तक सुरक्षा नहीं किया। आज मुझे 2 बजे, तो जब ये मेरे से पदाधिकारी के पास जिनको सुरक्षा दिया गया है सरकार की तरफ से, उस कानून को नहीं मानती है, यहाँ सुरक्षा नहीं देती है, तो हमारे पहले भाई बहनों को अपनी सुरक्षा की जिम्मा तो लेना ही पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना सुरक्षा अपने हाथों रखना चाहिए और ममता बनर्जी के भरोसे रहेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। आपको पश्चिम बंगाल के जनता ने विश्वास करके आपके हाथ में सरकार का बागडोर दिया है, पुलिस आपकी है, मंत्री आपके हैं, थानेदार आपका है, और फिर भी आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो ये बहुत निंदनीय है और ये बहुत बुरी बात है। ये तो पश्चिम बंगाल के लोगों को दिखाना होगा कि आपने हमें चुनकर दिया, 5 साल से हम सरकार में है, लेकिन हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये पश्चिम बंगाल के लोग देख रहे और जरूर इसका जवाब 2026 में चुनाव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मुसलमान में बांटना छोड़ दिए, हम एक रहेंगे तो सेव रहेंगे। हम सबकी बात कर रहे हैं, भारत में रहने वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारतीय है, हर हिंदुस्तानी हिंदू है, इसका हिंदू बात कर रहे हैं। हम सभी को है, फिर ये